Yes, good morning class. So yesterday we had covered the topic the emergence of two-part block of the first chapter of your first book, the contemporary world politics. So today we shall be doing the other topic. Other than this, I hope you have taken a reading at least. Did anyone read the chapter at home? Anyone? You can raise your hand. Who had went to the home and read the chapter at least once? Thoroughly no. Some busy day. Okay. Let's continue then. So this part, arenas of the Cold War, that we will show doing it later on. Today we will be doing the topic challenges to bipolarity, because arenas of Cold War, I think this is not in your syllabus, it's not written, but maybe it can be a important part while you are answering your questions. So we will do that later on. But the important part which we shall cover today is challenge to bipolarity. So before we start this topic, and this is an important topic of this chapter, and it's a question aa sakta hai. So read it carefully. We will be doing that. But before we move forward, the important thing is here you should know the meaning of bipolarity. Anyone? It's although it's written. Prerna, do you have any idea? We have completed the syllabus. Tiwala have given in the exam also, unit exams. Any idea about the meaning of bipolarity? Lakshmi? No? Siddharth? Sir, there were two main power blocks and World War I. Dawa? Any idea? Okay. Let me. Okay, so many of you must be knowing, but let's see and understand the meaning of bipolarity first of all before we start this topic. What do we understand by challenge to bipolarity? So it's written here, meaning of bipolarity, it is a system of world order in which the majority of global economic, political, military and cultural influence is held between two states. When we are talking about two states, it means all the economic, political, military and cultural activities and their influence were into the two hands if we talk about World War II, and those two states were, we can see from the classic case or classic example of the Cold War, that is US and USSR. Indirectly, bipolarity means our world was divided into two poles. दो poles बहुत strong हो गए थे, जैसे हमारा नॉर्थ और साउथ पोल होता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, वेस्ट और ईस्ट पोल, वेस्टर्न अलायंस एंड ईस्टर्न अलायंस, और you can call it first world or the second world. One more term you can call it with, what's that? Yesterday I told you, Western Alliance, Eastern Alliance, US and USSR, or first world, second world and third world. These three things I told you. Okay, so this system, see it again. You can write this definition. This is important. 1 mark में our definition can come. What do you understand by bipolarity? And this will be playing an important role this time in the next chapter also. वो क्या है हमारा? End of bipolarity. तो मीनिंग आपको बहुत क्लियर होना चाहिए माइंड में. हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दो पोल्स की, यूएस और यूएसएसआर, बट दिस जो टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं दैट इज आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. उससे पहले तो बाइपोलैरिटी नहीं था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, बट आफ्टर विद द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये सिचुएशन हमारी कंट्री में ग्लोबली हो गई थी कि देयर वाज अ सिस्टम ऑफ बाइपोलैरिटी वेयर ऑल द ग्लोबल इकोनॉमिक, पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री, कल्चरल इन्फ्लुएंस था, जो डोमिनेंस था वो किसका था? इन्हीं दो पावर्स का था, यूएस और यूएसएसआर. दैट इज व्हाई वी कॉल, इस टॉपिक हम ले रहे हैं फिर चैलेंज टू बाइपोलैरिटी. तो ये बाइपोलैरिटी चल रही थी आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर, इसको चैलेंज कहां से आता है? वो थर्ड ऑप्शन क्या आता है लोगों के पास, यू नो दैट, बट इसको समझना, चैलेंज टू बाइपोलैरिटी, जो इन दोनों का बहुत डोमिनेंस था पूरे वर्ल्ड में. इफ यू टॉक अबाउट देयर इकोनॉमिक कंडीशन, देयर पॉलिटिकल सिस्टम, मिलिट्री पावर और देयर कल्चर डोमिनेंट. जैसे हम ग्लोबलाइजेशन में पढ़ा था, कल्चर भी इतना इंपॉर्टेंट था, इतना इन्फ्लुएंस कर रहा था हमारी इंडियन सोसाइटी में. हम देखते हैं तो हम किसको फॉलो कर रहे हैं? वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं. तो इतना डोमिनेंस उनका था, बट उसको एक चैलेंज आता है. वो चैलेंज कहां से आता है हमारा? कहां से आएगा खुशी? क्या चैलेंज हो सकता है फॉर बाइपोलैरिटी? निकिता? नॉन अलाइन मूवमेंट. वो एक चैलेंज की तरह आया जिसने उन कंट्रीज को एक अदर ऑप्शन दिया कि अगर दे डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस, दे डोंट वांट टू जॉइन दिस ग्रुप्स, दे हैव द थर्ड ऑप्शन दैट इज NAM. ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, एम्स अलग थे इफ यू कंपेयर इट विद वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस. दैट इज व्हाई नाउ वी विल कवरिंग challenges to bipolarity. Indirectly we will be studying all about NAM. Okay, इतना क्लियर है किसी को? क्योंकि इसको बेस समझ लेना, नेक्स्ट चैप्टर में दिस इज गोइंग टू बी अ इंपॉर्टेंट पार्ट. राइट दिस डेफिनेशन इफ यू वांट. So now I am taking the content of your book. I hope इतना विकास बाइपोलैरिटी अंडरस्टूड है मीनिंग. ठीक है,
we have already seen how the Cold War tended to divide the world into two rival alliances. तो हमने ये क्या देखा है, जो कोल्ड वॉर में क्या था, our world was divided into two halves, or we can say two alliances. It was in this context that non-aligned offered the newly decolonized countries of Asia, Africa, Latin America third option. आपका वर्ड आ रहा है decolonized. Colonization का मीनिंग आपका 6, 7, 8 की बुक में भी है. इट मींस जिसमें हमारा डोमिनेंस, आउटसाइड पावर का जब डोमिनेंस होता है किसी कंट्री की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम के ऊपर, उसको वो डोमिनेट करता है, उसको अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करता है, अथॉरिटी उनकी होती है. इट मींस वी आर अ कॉलोनी एंड दे आर द कॉलोनियल पावर. तो जब बहुत सारी कंट्रीज इस टाइम में आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, बहुत सारी कंट्रीज क्या हुई थी हमारी, इंडिपेंडेंट हुई थी, मतलब डीकोलोनाइज हुई थी. डीकोलोनाइज मतलब फ्री हुई थी उनके रूल से. तो जब ये वाली कंट्रीज डीकोलोनाइज हुई है, यस्टरडे आल्सो आई टोल्ड यू, उनको क्या था, थर्ड ऑप्शन चाहिए था. दे डोंट वांट, बहुत सारी कंट्रीज उनका पार्ट होना चाहती थी. फॉर क्या रीजंस थे, फॉर प्रोटेक्शन, वेपन्स एंड क्या था, इकोनॉमिक गेन्स. ये तीन रीजंस थे. बहुत सारे पार्ट होना चाहते थे. बट ऑन द अदर हैंड देयर वर सम कंट्रीज इन एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका व्हिच डिड नॉट वांटेड टू बी पार्ट ऑफ ईस्टर्न अलायंस और वेस्टर्न अलायंस. क्यों? बिकॉज दे वांटेड कि जो उनकी हार्ड अर्न्ड सॉवरेनिटी है, जो इंडिपेंडेंस हम पढ़ते हैं ना, इंडिपेंडेंस पीरियड अपना बुक से, आपकी इतनी हिस्ट्री में भी वही चल रहा होगा आपका, तो कितनी मुश्किल से हमें अपनी इंडिपेंडेंस मिली है, तो हम उस सॉवरेनिटी को हम लूज या गिव अवे नहीं करना चाहते थे. बिकॉज जिन्होंने हमारे ऊपर कंट्रोल रखा, हम उन्हीं के साथ अलायंस बना लें, मे बी वो दोबारा से हमारे ऊपर डोमिनेंट हो जाए, तो हम उनसे बहुत अलग रहना चाहते थे. हम अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट स्लो हो बट अपने आप करना चाहते थे. दैट इज व्हाई दे स्टार्टेड एंड ऑप्टेड फॉर द थर्ड ऑप्शन, जो क्या था, नॉन अलाइंड मूवमेंट. ऑल्दो इंडिया वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यू कैन से, क्योंकि हम फाउंडिंग मेंबर थे. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज, तो उनके पास एक थर्ड ऑप्शन था. अगर वो इन दो का पार्ट नहीं होना चाहते हैं, तो इस पार्ट में वो आकर के ज्वाइन कर सकते थे. दैट इज व्हाई ये इंपॉर्टेंट है, जो लाइन उसके दोबारा रीड कर रहा हूं. इट वाज इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट नॉन अलाइंड ऑफर्ड द न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका अ थर्ड ऑप्शन नॉट टू ज्वाइन ईदर ऑफ द alliances. तो ये एक थर्ड ऑप्शन दे रहा था इनको. ठीक है. The roots of NAM were backed up. ये इंपॉर्टेंट है. There will be a question definitely. फाउंडिंग मेंबर से नेम आ सकते हैं, कंट्रीज आ सकती हैं, fill in the blank फॉर्म में आ सकता है. It can be in a form of map also, कि जो फाउंडिंग मेंबर थे उनकी कंट्रीज मार्क करने को आ सकती हैं. तो ये 5 आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए. देखिए, the roots जो स्टार्ट होता है सबसे पहली बार, the roots of NAM were backed to the friendship between 3 leaders. 3 लीडर की फ्रेंडशिप से NAM जो एक ऑर्गेनाइजेशन बना स्टार्ट होता है. पहले 3 लोग थे. कौन कौन से? यूगोस्लाविया. सबसे पहले यूगोस्लाविया दिखा देता हूं तुमको. मैप जो हमने कल पढ़ा था, इट वुड बी वेरी क्लियर टू यू देन. सी दिस ग्रीन पार्ट आई टोल्ड यू, येलो पार्ट इज द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, रेड पार्ट आई टोल्ड यू आर द सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज. दोस आर द अलायंस ऑफ यूएसएसआर. यू कैन सी द सी दिस ग्रीन पार्ट, क्या ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है. एंड यू कैन सी यूगोस्लाविया, और यहां पे एक इंपॉर्टेंट कैपिटल क्या है उसका, बेलग्रेड. So this is an important part. जब हम नॉन अलाइन मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो नॉन अलाइन मूवमेंट में मैंने क्या बोला, कौन सी कंट्रीज थी, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इसीलिए ये ग्रीन है. और नॉन अलाइनमेंट का जो पहला समिट होता है, पहला मीटिंग होता है, वो कहां पे होता है, बेलग्रेड में होता है. ठीक है, जो कहां पर है, यूगोस्लाविया. लोकेशन यू कैन सी ग्रीन में, बस यही दिख रहा है, यूरोप के क्लोज, क्योंकि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री NAM का पार्ट था, यहीं से स्टार्ट हुआ था. तो मैप तो ये बोलता देखता रहा करो, तो आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एटलीस्ट. ठीक है. तो फाउंडिंग मेंबर में यहां से हमारे कम्युनिटी शुरू होगी. देखिए, नाउ टर्न द पेजेस. So the roots of the NAM went back to the friendship between the 3 leaders. 3 leaders की फ्रेंडशिप है. पहला कौन है, यूगोस्लावियास, जो अभी मैंने लोकेशन दिखाई, जोसेफ ब्रोज टीटो, इंडियाज जवाहरलाल नेहरू एंड इजिप्ट्स लीडर गमाल अब्देल नासिर. So these 3 were the major friends जिन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया. They thought of this type of organization who led a meeting in 1956. तो सबसे पहले इनकी मीटिंग होती है तीनों की कहाँ, 1956. बट इट वाज नॉट अ फॉर्मल मीटिंग, इट वाज अ जनरल मीटिंग, जिसको हम उसका एस्टैब्लिशमेंट वाला डेट हम 1956 नहीं बोलेंगे. वो कब बोलेंगे, देखिए. तो पहले 1956 में मिलते हैं तीनों. उसके बाद क्या होता है, इंडोनेशियाज सुक्रानो एंड घानाज क्वामे नक्रुमे स्ट्रांगली सपोर्टेड देम. इसके बाद ये जो 2 मेंबर्स थे इंडोनेशिया के और घाना के, इन्होंने भी स्ट्रांगली सपोर्ट किया इन तीनों को. इसीलिए these 5 leaders came to be known as the 5 founding members of NAM. तो थोड़ा सा डिटेल पता होनी चाहिए. Although there are 5 founding members, but starting में they 3 met in 1956. उसके बाद 2 लोगों ने और इन्हें स्ट्रांगली सपोर्ट किया. ओके, घाना एंड इंडोनेशिया. तो इसी को हम बोलते हैं 5 फाउंडिंग मेंबर्स. प्लीज लर्न देयर नेम्स, लर्न द लोकेशन ऑफ द कंट्रीज. दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर यू. बहुत सारे आंसर्स में यूज होगा. 100% नाम के ऊपर क्वेश्चन तो आपका
आएगा ही, ऑल्दो वो इंडिया से रिलेट करके आएगा कि इंडिया का क्या रोल रहा, व्हाटएवर, जवाहरलाल नेहरू का क्या रोल रहा, इस टाइप से आ सकता है. तो दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी विल डू लेटर ऑन. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपिक. The first non-aligned summit was held in, underline कर लो, first summit जब पूछा जाएगा तो आप 1956 नहीं बोलोगे. यहाँ पे नाम की बात हो रही है, जहाँ पे पांचों फाउंडिंग मेंबर है, तो ये होती है हमारी 1961 में held in Belgrade. Underline this. There can be a question in the blanks, कुछ भी, ठीक है. 1961 याद रखेंगे. 62 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, इस टाइप से एक रिलेट करके रखा हुआ है. उससे पहले एक साल पहले क्या हुआ है, इनकी पहली समिट हुई है, और 1962 में इंडिया चाइना का वॉर भी है. इस टाइप से याद रखा करो, ठीक है. This was the culmination of at least 3 factors. When they were forming this organization, NAM जो पर्पस ऑब्जेक्टिव थे, तो उनके माइंड में 3 बेसिक चीज थी जो उस टाइम पे एनवायरनमेंट था वर्ल्ड का, उसके अकॉर्डिंग जब इस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया, एस्टैब्लिश किया, तो 3 थिंग्स वर इंपॉर्टेंट. फर्स्ट वाज कोऑपरेशन अमंग दीस 5 कंट्रीज. दे वांटेड, जो हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं, सबसे पहले हम 5 मेंबर्स के बीच में बहुत ज्यादा कोऑपरेशन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री, कल्चरल या एनी एटमॉस्फेयर. देयर शुड बी अ प्रॉपर कोऑपरेशन बिटवीन दीस 5 मेंबर्स, बिकॉज जब इनके बीच में कोऑपरेशन होगा, देन ओनली they can influence the other smaller countries, decolonized countries, to be the part of NAM, because they wanted this organization to grow further. तो कैसे ग्रो करेगा, तो ये 3 चीजें माइंड में रखनी पड़ेगी. इनका कोऑपरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए. ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशंस एंड इट्स वाइडनिंग एरिनास. इस टाइम पर 1961 में इन्होंने एस्टैब्लिश किया इसको. इस टाइम पे कोल्ड वॉर बहुत स्ट्रांगली चल रहा था, और उसके एरिनास इंक्रीज हो रहे थे. एरिनास इंक्रीज हो रहे थे मींस मेंबर्स इंक्रीज हो रहे थे. मेनी कंट्रीज वर जॉइनिंग द अलायंस ऑफ वेस्टर्न अलायंस, दैट इज यूएस, और बहुत सारे ईस्टर्न अलायंस को ज्वाइन कर रहे थे, दैट इज यूएसएसआर अलायंस. तो एरिनास बढ़ रहे थे, ज्योग्राफिकल एरियाज बढ़ रहे थे. कोल्ड वॉर के अंदर शार्प डिवीजन देख पा रहे थे हम फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज के बीच में. तो इस टाइम पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन था NAM, इट वांटेड टू बी अ थर्ड ऑप्शन. जो इनकी राइवलरीज है वर्ल्ड में, जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, दे वांटेड पीस एंड डेकोरम टू बी मेंटेन्ड इन द कंट्री. तो इस ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक एम क्या था, हम इनके बीच के राइवलरीज को क्या करें, सॉर्ट आउट करें. इनके प्रॉब्लम्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, इसको कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज करें, सो दैट देयर कैन बी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस एंड डेकोरम अराउंड द वर्ल्ड. जब पीस एंड डेकोरम होगा, तभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो पाएगी अदर कंट्रीज की. क्योंकि अगर मेजर पावर्स वर्ल्ड की हमेशा इन्वॉल्व रहेगी डायरेक्ट वॉर में, तो डेवलपमेंट बहुत स्लो हो जाता है और हम बहुत ईयर पहले चले जाते हैं. अगर किसी कंट्री में एक भी वॉर होता है, 1 साल का भी, तो लगा लीजिए हम 10 इयर्स बैक चले जाते हैं डेवलपमेंट में. इतना इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन होता है. तो जो हमने 10 साल, अगर आज हम आगे आए हैं, आज हमारा वॉर हो जाता है किसी कंट्री से, प्रॉपर हॉट वॉर हो जाता है, तो हम 10 इयर्स पीछे चले जाते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में. ठीक है. फिर आप किसी फील्ड की बात कर लीजिए, पॉलिटिकल सिस्टम की, इकोनॉमी की, मिलिट्री की, डेवलपमेंट की, टेक्नोलॉजी की, हर उसमें हम 10 इयर्स बैक चले जाते हैं. तो यहाँ पर NAM चाहता था जो ये ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशंस है एंड इट्स वाइडनिंग एरियाज, इसको क्या किया जाए, लेस किया जाए. The dramatic entry of many newly decolonized African countries into international arenas. By 1960, there were 16 new African members in the UN. इस टाइम पे क्या है, आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर बहुत सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो रही थी, तो यहाँ पे एक रेशियो दिया हुआ है, 16 कंट्रीज अफ्रीका की थी जो डीकोलोनाइज हुई थी, जो फ्री हुई थी कॉलोनियल रूल से. तो इस टाइप की कंट्रीज को चाहते थे अलायंसेस में मिक्स होना हो, वो किस में ऐड करें, NAM में ऐड करें. ठीक है. तो ये सब कुछ बेसिक से ऑब्जेक्टिव्स थे व्हेन दे स्टार्टेड देयर दिस ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ 5 फाउंडिंग मेंबर्स. आई होप जो डेटा इसमें है, जो लोकेशंस इसमें है, वो आपको लर्न हो गई होंगी. यू हैव अंडरलाइंड इट. लेट्स मूव फॉरवर्ड देन. द फर्स्ट समिट वाज अटेंडेड. अब थोड़ा सा डेटा दे रहा हूं. जो फर्स्ट समिट कब हुई थी, व्हिच व्हाट वाज द डेट एंड प्लेस, पल्लवी, व्हिच वाज द डेट, फर्स्ट समिट ऑफ NAM, फर्स्ट समिट ऑफ NAM, which year, 1961. प्लेस, प्रेरणा, बेलग्रेड. ओके. तो ये जब होती है, देखिए, द फर्स्ट समिट वाज अटेंडेड बाय 25 मेंबर स्टेट्स. उसमें 25 मेंबर स्टेट्स ने पार्ट किया था, और दो 5 फाउंडिंग मेंबर्स थी. ओवर द ईयर द मेंबरशिप ऑफ NAM वो हैज एक्सपेंडेड. अब ये मेंबरशिप इंक्रीज होती गई उस टाइम के बाद. द लेटेस्ट मीटिंग, सबसे लेटेस्ट मीटिंग हम NAM की देखते हैं, वो 17th थी. 1 2 3 सेट गिने ईयर वाइज है, तो ये 17th थी. किस ईयर में, इन 2016 वेनेजुला. वेनेजुला है हमारा साउथ अमेरिका में. ठीक है. तो यू शुड नो दैट साउथ अमेरिका में वेनेजुला, और जो 17th समिट हुई थी हमारी, वो हुई थी वेनेजुला में 2016. इट इंक्लूडेड 120 मेंबर्स. जो ये 2016 में मीटिंग हुई थी, इसमें कितने मेंबर्स थे, 120 and 17 observer countries. Observer countries होती है, they want to see the objective, process and structure of the meeting
and the organization of NAM. अगर उनको लगता है कि they can also be a part of NAM, वो ज्वाइन करते हैं. तो ऑब्जर्वर्स भी होते हैं जो देखते हैं उस मीटिंग को, ठीक है, इस समिट को. तो याद रखेंगे 2016 में क्या हुआ था, 17th मीटिंग हुई थी, इसमें मेंबर्स थे 120. तो ये डेटा से दे आर शोइंग कहां पहली मीटिंग में 25 मेंबर्स थे एंड बाय 2017 दे हैव ग्रोन अप टू 120. दैट इज अ वेरी बिग नंबर इफ वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ कंट्रीज. 120 कंट्रीज प्लस 17 ऑब्जर्वर्स भी अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं, इट मींस दैट ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग वेरी वेल. ओके, as non-aligned movement growing into a popular international movement, countries of various different political systems and interests joined it. पहले क्या था, if we see the base or the foundation of NAM, basically those were the countries which got freedom from the British rule or the French rule, who were recently decolonized after the Second World War. मतलब जो countries को freedom मिली थी, those were the part of NAM. But with the passage of time, as with the growth of this organization, इसमें बहुत सारी countries अलग-अलग ideology से, different political system से, they started and coming and joining this organization. तो पहली organization कैसा था? Similar sort of countries थी, with similar sort of economic growth, political system भी almost same, तो same structure था. But now mix बन होने लगा यहाँ पर. तो इसके लिए क्या term use कर रहे हैं देखिए. This made the movement, this नाम less homogeneous. You must have heard of two terms, homogeneous and heterogeneous. In the science, homogeneous is the same solution and heterogeneous में क्या है, बहुत सारी चीजों का मिक्सचर होता है जो सॉल्यूशन होता है. तो पहले homogeneous था, एक टाइप की कंट्रीज थी which were the part of NAM. But with passage of time, जिसका इसका ग्रोथ और डेवलपमेंट देखा कंट्रीज ने, इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रीज आने लगी with different economic growth, with different political system, with different ideologies, different type of population, different religion. अलग-अलग कंट्रीज इसका मेंबर बनने लगी. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन था क्या हो गया, हेटेरोजेनस हो गया टाइप से बोल सकते हैं. So this made the movement less homogeneous and also made it more difficult to define in very neat and precise term. और इसको डिफाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया कि what do we understand by NAM. अब इसमें अलग-अलग कंट्रीज हो गई, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या. तो इसके लिए क्या टर्म यूज किए. Increasingly, NAM was easier to define in terms of what it was not. So it became easy for the founding members of NAM to define NAM as what it was not. ये बताना मुश्किल हो गया कि क्या है हम, बट ये बताना इजी था कि क्या हम नहीं है. क्या हम नहीं है, थर्ड ऑप्शन दे रही है. इट वॉज नॉट अबाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ एन अलायंस. बस हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न अलायंस का पार्ट नहीं है, हमें इतना पता है. ठीक है, अब हमारे अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं, दैट इज अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी. बट जो बेसिक थिंग थी, वी नो अबाउट आवर ऑर्गेनाइजेशन, वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ ईस्टर्न अलायंस और वेस्टर्न अलायंस. एक चीज ये नहीं पता, ठीक है, क्योंकि चलते चलते बहुत सारे डेवलपमेंट्स और चेंजेस पैटर्न स्ट्रक्चर में आ गए थे. तो इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर NAM मेंबर्स to explain or define what NAM was all about. The thing which they knew was that they were not a part of any alliance, that is US or USSR. एक चीज उनको माइंड में क्लियर थी, जिसके लिए फॉर्म किया था इस NAM को. The policy of staying away from alliance. अब दो चीजें इंपॉर्टेंट आती है. अब यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिवली ट्रीट किया गया NAM जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बोला गया आइसोलेशन के साथ इसको ऐड किया गया, न्यूट्रलिटी के साथ इसको ऐड अप किया गया. इट मींस इनको वर्ल्ड के अफेयर से लेना देना नहीं है. बट उसके बाद NAM इसको एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअली स्टेटस है क्या NAM का. इफ यू टॉक अबाउट द ग्लोबल स्टेज में, ग्लोबल प्लेटफॉर्म में NAM है क्या. ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे. कुछ क्रिटिसाइजर्स ने इनको बोला है, द पॉलिसी ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंस शुड नॉट बी कंसिडर्ड आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी. क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलने लगे आइसोलेशन और न्यूट्रलिटी को फॉलो करता है NAM, जो वर्ल्ड की एक्टिविटीज से बहुत दूर रहता है. उसको वेस्टर्न अलायंस से मतलब नहीं है, ईस्टर्न अलायंस से मतलब नहीं है, किसी वॉर से मतलब नहीं है, किसी को हेल्प नहीं करनी है, पीस, डेकोरम, डेवलपमेंट, ग्रोथ, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है. जस्ट दे आर अ सेपरेट ग्रुप, एज इफ इन अ क्लास दो ग्रुप बन गए, इनमें आपस में लड़ाई चल रही है, सेपरेट 3-4 बॉयज और 2-3 गर्ल्स बैठे हुए हैं, उनको लेना देना नहीं है क्लास से. बट ऐसा नहीं था. जो वो सेपरेट ग्रुप बैठा हुआ था, इट वाज वेरी मच एक्टिवली इन्वॉल्वड इन द वर्ल्ड एक्टिविटीज. जैसे हमने पहला बोला था, एक ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा, वो क्या चाहता था, जो कोल्ड वॉर में राइवलरीज और एरिनास बढ़ रहे हैं इनके अलायंसेस से, इसको वो क्या करना चाहता था, कम करना चाहता था. इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स थी, लड़ाई झगड़े थे, इनको कंट्रोल करना चाहते थे, कम करना चाहते थे. उसके लिए हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे. The policy of staying away from alliances should not be considered isolationism और न्यूट्रलिटी. आइसोलेशन का मतलब तो समझते होंगे, अभी कोरोना में आइसोलेट कर देते हैं, क्या करते हैं, अलग रूम में रखते हैं उसको, किसी से मिलना नहीं है, जुलना नहीं है, उसका बाहर की एक्टिविटीज से कोई लेना देना नहीं है. तो NAM ऑर्गेनाइजेशन को कुछ इस तरीके से बोला जा रहा था.
ठीक है, आइसोलेट हो गया है या न्यूट्रल है, इधर भी नहीं उधर भी नहीं, वर्ड से कोई मतलब नहीं है, बट इसको एक्सप्लेन किया जाता है आगे। नॉन अलाइनमेंट इज नॉट आइसोलेशनिज्म, सिंस आइसोलेशनिज्म मींस रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम वर्ल्ड अफेयर। आइसोलेशन का मतलब हो गया वर्ल्ड अफेयर से बिल्कुल दूर रहना। आइसोलेशनिज्म सम्स अप टू द फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएस। अगर हम आइसोलेशन का प्रॉपर मीनिंग दें, एक एग्जांपल दें वर्ल्ड हिस्ट्री से, तो वो किस पे जाता है, यूएस फ्रॉम द अमेरिकन वॉर। जब अमेरिका का वॉर चल रहा था फॉर इंडिपेंडेंस, तो उसमें यूनाइटेड स्टेट्स क्या था, आइसोलेट हो गया था, अलग हो गया था। ठीक है, अगर उनका इंडिपेंडेंस चल रहे तो हमें कोई लेना देना नहीं है अमेरिका के फ्रीडम स्ट्रगल से। तो एग्जांपल दिया है इन 1787 में ऐसा हुआ था, अप टू द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इन कंपैरिजन, अगर हम अमेरिका के इस प्रोसेस से कंपेयर करें नैम को, नॉन अलाइंड कंट्रीज को इंक्लूडिंग इंडिया प्लेड एन एक्टिव रोल। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं नैम को, तो नाम ने हमेशा ही बहुत एक एक्टिव रोल पार्टिसिपेशन में शो किया है, इंक्लूडिंग इंडिया, इन मेडिटेटिंग बिटवीन द टू राइवल अलायंसेस। मेडिटेटर की तरह एक काम किया है, बिचौलिया की तरह एक काम किया है इन दो राइवल ग्रुप्स के बीच में, जिसकी वजह से पीस और स्टेबिलिटी वर्ल्ड में स्टेबल हो। Their strength was based on their unity and their resolve to remain non-aligned despite the attempt by the two superpowers to bring them. बहुत सारे attempt किए गए by both the superpowers to influence the countries which were the part of NAM, कि वो उनको ज्वाइन करे, कुछ कंट्रीज इनको ज्वाइन करे, बट स्टिल दे हैड लॉट ऑफ यूनिटी। इस ग्रुप में बहुत यूनिटी थी, यूनिटी के साथ वो रहे साथ, पर इसको हम आइसोलेटेड या न्यूट्रलिटी के साथ ऐड अप नहीं कर सकते थे इस ऑर्गेनाइजेशन को। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमेशा किस चीज के लिए काम किया है, फॉर ब्रिंगिंग पीस एंड स्टेबिलिटी इन द कंट्री एंड रिड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट, टेंशंस एंड कॉन्फ्रंटेशंस बिटवीन टू अलायंसेस। तो जो दो यूएस और यूएसएसआर के बीच में राइवलरीज थी, टेंशंस थी, कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वॉर्स थे, इसको हमेशा न्यूट्रलाइज करने की, कम करने की कोशिश की है नैम ग्रुप ने, जिसमें इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। ठीक है, जैसे कि एक वॉर हुआ था कोल्ड वॉर के टाइम पे, कोरियन वॉर हुआ था नॉर्थ और साउथ कोरिया में, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था उसको रोकने के लिए। तो एक एग्जांपल है ये कि नाम के जो मेंबर्स हैं, उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि वर्ल्ड में जो ये इनस्टेबिलिटी चल रही है उसको स्टेबल कर सकें, पीस ला सकें, डेकोरम ला सकें। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये न्यूट्रल नहीं थे, बट दे वर नॉट द पार्ट ऑफ अलायंस। वो वॉर नहीं चाहते थे, बट इसका मतलब ये नहीं था वो दूर थे, वो हमेशा ट्राई करते थे इनके बीच में क्या हो सके, फ्रेंडशिप हो सके, प्रॉब्लम्स ना रहे, इतनी ज्यादा राइवलरीज ना हो कि उसकी वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो इसके लिए ये कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालते रहते थे। तो अलूफ नहीं थे, आइसोलेटेड नहीं थे, न्यूट्रल नहीं थे, तो ये टर्म्स हम नाम के साथ, तो एग्जांपल आ सकता है, यू विल हैव टू जस्टिफाई। ठीक है, तो एक जवाहरलाल नेहरू का ये जो एग्जांपल दिया मैंने, कोरियन वॉर में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उस वॉर को। तो ऐसे एग्जांपल्स आपको रीडिंग लेनी पड़ेगी इस चैप्टर की। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट इज ऑल्सो नॉट न्यूट्रलिटी। फिर उसको और फर्दर दे आर एक्सप्लेनिंग, नॉन अलाइनमेंट को हम न्यूट्रलिटी भी नहीं बोल सकते हैं। न्यूट्रलिटी रेफर्स प्रिंसिपली टू अ पॉलिसी ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ वॉर। अगर मैं कह रहा हूं मैं न्यूट्रल हूं, मैं दो लड़कों की लड़ाई हो रही है आपके ग्रुप में, मैं बोलूंगा मेरा दोस्त दोनों है पर मैं न्यूट्रल हूं, इट मींस आई एम नॉट ऑन द साइड ऑफ एनी ऑफ द टू बॉयज, मैं न्यूट्रल हूं, मेरा कुछ कोई इसको मारे वो उसको मारे, मैं बीच में नहीं आऊंगा। बट नॉन अलाइनमेंट की अगर हम बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूट्रल नहीं था। Neutral refers to principally to a policy of staying out of war. States practicing neutrality are not required to help end a war. क्योंकि जो न्यूट्रल होते हैं वो कभी भी हेल्प नहीं करेंगे कि वॉर को एंड किया जाए। बट इफ यू विल सी दिस प्रोसेस ऑफ नाम, यू विल स्टडी अबाउट नाम, यू विल फाइंड लॉट ऑफ एग्जांपल्स वेयर नाम हैज पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स टू एंड अप वॉर बिटवीन दीस टू राइवल्स। They do not get involved in wars. जो न्यूट्रल होते हैं वो वॉर्स में कभी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। They do not take any position on the appropriates or morality of a war. Non-aligned states, including India, were actually involved in wars. अगर हम non-alignment movement की बात करें, इंडिया की बात करें actually, तो we were directly involved in the process of war. We were not trying that war और ज्यादा हो, but we tried कि ये जो rivalries है wars इनके बीच में वो कम हो और हमारी जो वर्ल्ड में peace establish हो पाए। तो हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहे एज अ मेंबर ऑफ नैम। तो हमें न्यूट्रल या आइसोलेशन जैसे टर्म से हमें लिंक नहीं कर सकते। ओके, दे आल्सो वर्क टू प्रिवेंट वॉर बिटवीन अदर्स एंड ट्राई टू एंड द वॉर्स एंड हैड ब्रोकन आउट। तो जो भी वॉर्स ब्रोक आउट हो रहे थे इनको पैचअप कराने की ट्राई हमेशा नाम करता रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट नाम, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। है तो 2 ही पैराग्राफ, पर इसमें बहुत डिटेल्स है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन डेफिनेटली विल बी देयर फ्रॉम नैम, आई एम टेलिंग यू। और इंडिया में इसका क्या रिलेशन, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, उसको लास्ट में कवर करेंगे। इंडिया का नाम ही क्या बोल रहे हो। सो एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट सो फार, जो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, एक्स्ट्रा बहुत हो गए तो बहुत ज्यादा है, बट एटलीस्ट जो इतना है इसी से आपको क्वेश्चन आ रहा है,
स्टिक टू द कंटेंट ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, इतना टाइम नहीं है। जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, आई एम ट्राइंग कि उसको लाइन बाय लाइन, क्योंकि तुम लोग रीडिंग कर ही नहीं रहे हो। यस्टरडे आल्सो नो वन हैज गॉन टू द होम, किसी ने रीडिंग नहीं की। एटलीस्ट जो पढ़ा उसे एक बार रीडिंग कर लेना।